Manager at IIT, International Institute of Technology and Education. So, I'll just give you a short overview about our company. So, we at IIT are bridging the gap between technology and global communication, preparing the students to thrive in an international career landscape with limitless opportunities by our Tech Plus Language Mastery course. So, we have technical courses like data science, data analyst, business analyst, and which we have combined them with our language mastery courses like German, French, and Japanese. Okay, so today I welcome you all to our Microsoft Excel with Analytics Industry Live Bootcamp. So this is organized in collaboration with Pune Cambridge Institute of Management and Computer Application, approved by AICTE and recognized by the Government of Maharashtra and affiliated to Savitribai Phule Pune University. So, joining this Excel course, Microsoft Excel with Data Analytics course, it's an industry men's boot camp which is designed to equip with your practical Excel and data analysis skills using real-based industry scenarios. So, this boot camp will bridge gap between your academic learning and industry expectations. So, you will learn how Excel is applied in business reporting, data analysis, and decision making using the real time examples and practical demonstrations. So, this program is focused on job ready skills, helping you understand how organizations actually use Excel, like beyond the basic formulas and just attendance sheets or doing some simple calculations. So, we have our tutor Arpita Dubey. She would be taking forward the lecture today, and if you have any doubts, you can just raise your hand and let us know your doubts if anything you don't understand. Okay? Arpita? Oh, yes, ma'am. Hello, ma'am. Yeah, hi. Okay, thank you so much, ma'am, for this kind introduction. Good afternoon, everyone. As ma'am tell you, I'm your trainer for today workshop, which is basically MS Excel with data analysis, which includes the many objective, how do we need to Excel for data manipulation, data cleaning, and also for creating the various dashboards and charts also. So we will just do this workshop from the basic Excel to intermediate to advanced level. We will start this workshop from the basic ideas and basic Excel, like the functions Excel has included. And before starting this workshop practically, I just wanted to know all of your education background, if you are right now working professional and doing UG and PG courses, and which course you are doing right now. So just let me know in your chat box. This way I can interact with you better. Working professional. Okay. Freelancing IT guy. Oh, that's nice. Okay, working professional. So all of you have having a basic idea of MS Excel, I think so. And also just let me know which language you're more comfortable into. If you want to continue this workshop in fully English, so I will continue it like that. And if you have want is at a mixed kind of language like English, so I will use English words as well as Hindi also, because the aim of this workshop is to understand MS Excel very deeply for your own purposes. So I just want
like there should not be any language barrier. Okay. Oh, that's nice. VPN computer application, and now I'm study for the data analyst. Oh, wow. That's a nice one course like BBA computer application. Okay. Okay, so I think like this, we will interact in this whole workshop. Okay, because and कोई भी अगर doubt आपको आता है, if you have any doubt, just let me know in chat box during this workshop or even after completing the topics and even after completing the workshop also. Okay, so just give me a minute. First, I will share my screen. Okay, I hope my screen is visible to you, all of you. Yes, it's visible. Yes, it is. Okay, so let's get into the interface of the MS Excel. Uh, so for the data set, for today, I'm using this data set, which includes the columns. This is the whole data set is about the card data set, and also we will use a laptop right data set for our analysis, and all functions will perform in Excel. So before this, I want to give a little introduction about the interface of Excel here. So if you just select the home tab here, you will get into the blank welcome to Excel and also more templates available. Like if you click on more templates here first, so for any purposes, like if you're working professional and just want to create a calendar and also a monthly company budget, and you don't have any idea, so by the help of this basic templates you will get an idea like how do we create dashboards, even the reports. So all these templates are available here for your basic idea. For now, I'm just selecting a blank workbook because I just want to give you the basic idea of the interface of Excel before starting any analysis on our data set. So here, as you can see, there are the various tabs available in MS Excel basically. Like first is home, and then insert tab, and then draw, page layout, formulas, data, review, view, and help. These all tabs has their different functions concepts. These are the very important, also the basic one functions included in these tab. Like if we like take a closer look to the home tab, there is various functions available. This whole data or whole options we can call it as a ribbon. In ribbon we see many options such as paste, cut, copy, format, printer. If you all like work in MS Word also, so these all basic functions you can see there as well as. And like if you want to make any like text bold, even italic, and you just want to insert any underline, this is the very basic one. And if you want to color any cell, so these options is available. So okay, so apart from this, as you can see, A, B, C, D, E, these all alphabetical refer to the numbers of columns available in the MS Excel. These all A, B, C, D, E alphabeticals are called columns in Excel. And on the left side, if you see, 1, 2, 3, 4 numerical way is telling you the numbers of rows. And if I'm selecting any cell, like the numbers of rows and numbers of column is named as a cell in Excel, and I'm just selecting randomly any cell. So on this top left side, you see the B3. What does B3 means here? It's like B is your column name and 3 is your row name, row number called. Okay, so this is how a cell is
referred in our MS Excel. Okay, so now after the basic idea, like if you just want to insert a new column before D or after D named column, you will just select the whole column here and then click on the insert option. Okay, so by this selecting insert column, a new column formed before the D column here. And just same you can do for the rows. Like if you want to add a new row before 7 number of row, you just have to click on insert. So this is how you can insert a row in Excel also. Okay, I'm just giving this basic idea. So those who are very new to Excel, and as you are all working professional and also like you have learned Excel and work on Excel before, so you know the basic ideas. Okay, so now after this, okay. Uh, okay, I just want the laptop price data set here. Okay. Okay, I will rename this as a car data set. It is named laptop price previously. Okay, so this whole data set consists of different columns such as model, year, engine size, fuel type, even transmission, mileage, doors, owner, count, and also price. First, we need to make it like more properly. अभी ये हमें इतना अच्छा vibe नहीं दे रहा है कि एक प्रॉपर डेटा सेट है हमारे पास. सो फॉर दिस पहले मैं इसको क्या करूंगी कि पहले इसको मैं पूरी बॉर्डर्स इसमें लगाऊंगी. So for this, I will use the borders options here and insert the all borders. Okay. And now we need to highlight these headings also like model, year, engine size, fuel type. So it will get a proper look for whole data set here. Okay. So now the data is looking more better. And after this, like I just want to explore the first topic, which is conditional formatting in Excel. I think most of you have done conditional formatting before also. Just I just want to tell you what is conditional formatting basically. Like it's a feature that is automatically changes the cell appearance as per your references or a condition. Like it will change its color, font, and also the icons as per your conditions basically. This is what a conditional format in Excel means. Now we can do it practically. So for condition formatting, there is an option available in home tab in ribbon. You can see condition formatting. There is various lists are available here. Options is available here. Rules. First is highlight cells rule. So what does it mean basically? Like in this highlight cells rules, there is various option such as if we need to highlight those cell whose value is greater than particular in any condition. And similarly, if we want to like just highlight those value which is less than 1000 or maybe other condition as per your convenience. And if you just want to apply the value for the between number, like as an example, I want to apply values which is greater between 1000 to 2000 maybe. Okay, and equals to text that contain. So condition formatting only does not work on numerical data. Okay, it will also work for the text one and for the date occurring. And if we want to identify if we have any duplicates values in our data set, so we need to highlight these duplicates value. Okay, so the first cells rule is basically for the greater than, less than, all these options are available. And if we talk about the second option, which is the top and bottom rules, so for right now, let's just focus on the highlight cells rules for the first option, which is the greater than. Okay, so for this, I need to select this whole
column here. We are selecting this price column. Okay, and just I will apply the rule. I'm applying the greater than rule here. Okay, so after clicking this, you can see a new tab is appears here. Okay, and if my condition is I want to highlight those cells whose value is greater than 8,000 only. Okay, the car models whose price value is greater than 8,000. I just want to highlight those. Okay, and apart from this, like if I need to change its color, like right now by default, it's selected light red fill with dark red text. And I just want कि मुझे ये color अच्छा नहीं लग रहा है. I need to change this color, such as green fill with dark green text. So in this drop-down list, I will select the green fill with dark green text option here, and then press OK. So after this, as you can see, the condition I applied before highlight two's number, which is greater than 8,000. So these are the numbers highlighted in green text color, cells or more, like cells highlighted, which is greater than 8,000 values. Okay. And अब मुझे इसको remove करना है. I don't want to I just want to apply the condition reverse. Like मुझे क्या करना है कि मुझे अब 8,000 से कम वाले cells को highlight करना है. So first, again मैं इसको select करूंगी. Then get to the clear rules here. And जो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट इज क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स. जैसे मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है, तो अभी मुझे सिर्फ इस कॉलम से जो है वो कंडीशन फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है. इफ यू वांट कि आपको हर कॉलम में एक कंडीशन फॉर्मेटिंग दिख रही है and you want to clear from the entire sheet, so you can select the second option also, which is the clear rules from the entire sheet. ओके, सो राइट नाउ मैं सिर्फ इस सेल्स में ही क्या करना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ. ओके, सो ये सारा जो आपने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया था फॉर हाईलाइटिंग द हायर वैल्यू, वो हमारा हट चुका है. नेक्स्ट जो है आपका वो है लेस देन. सो लेस देन एग्जैक्टली वर्क लाइक द ग्रेटर देन. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको करके बताती हूँ. जैसे मैंने आपको सेम हाईलाइट किया था 8,000 से ऊपर, वैसे ही मैं लेस देन 8,000 से अंदर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ. सेम इसका भी कलर मुझे चेंज करना है. In this case, I'm selecting the yellow fill with dark yellow text here option, and then press OK. Okay, so एस पर्टिकुलरली जैसे हमने पहले किया था, अभी भी येलो जो टेक्स्ट है वो आपका हाईलाइट हो चुका है. अगेन आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस होल कंडीशन एंड want to apply other condition here. Okay, so मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर दूंगी. अब नेक्स्ट हम जो ऑप्शन इसमें देखेंगे वो है बिटवीन. बिटवीन इज लाइक कि एज एन एग्जांपल मुझे इस डेटा पूरे कॉलम में वो हाईलाइट करने हैं सेल्स जो कि 8,000 से लेके 10,000 के बीच में बिटवीन हो. सो फॉर दिस आई एम सिलेक्टिंग द बिटवीन ऑप्शन इन दिस लिस्ट here, between. Now accordingly I will give my condition, which is price which is between to 8,000 to 10,000 here. And by default, I will select the light red fill with dark red text here also. Then press OK. So only two cells are highlighted which values are like between 8,000 to 10,000 here. So this condition formatting makes us easier to find out कि कौन सी वैल्यूज किस जगह पे हैं. हमें बार बार मैन्युअली एक एक वैल्यूज को ढूंढने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ओके, एंड देन क्लियर रूल. ओके, सो नाउ लाइक हमने ग्रेटर देन किया, लेस देन किया, बिटवीन किया, इक्वल्स टू भी सेम वैसे ही काम करता है.
if you want to obtain a particular that value which consists 8501 value, in this value आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट जो प्राइस सेल है वो 8501 वैल्यू कंसिस्ट कर रहा है। अगर आपको सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है सो आप वहां पे क्या कर सकते हो, इक्वल्स टू को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल हम कंडीशन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में कैसे लगा सकते हैं मैं वो भी आपको शो करना चाहती हूँ। ओके, सो फॉर दिस हमारे पास टेक्स्ट वाला कॉलम कौन सा है, वी हैव मॉडल, फ्यूल टाइप, ट्रांसमिशन एंड ऑल्सो अदर, आई डोंट थिंक सो। ओके, सो हम मॉडल पर ही जो है वो टेक्स्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाकर एक बार चेक करते हैं। पूरा सिलेक्ट करते हैं इसको, देन कंडीशन फॉर्मेटिंग, highlight cells rules. We have option that text that contains. Select करते हैं। अब कौन सा मॉडल आपको हाईलाइट करना है, बेसिकली आई जस्ट वांट टू हाईलाइट मॉडल, कार मॉडल विच नेम्ड एज रियो। ठीक है, रियो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। इफ यू वांट तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लाइक अगर आपको गोल्फ चाहिए तो आप गोल्फ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गोल्फ चेंज कर दे रही हूँ, और सेम जैसे कि आप कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, इस बार मैं पूरा सेल कलर नहीं कर रही हूँ, इस बार मैं सिर्फ रेड टेक्स्ट वाले को हाईलाइट कर रही हूँ। सो फॉर दिस आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द रेड टेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल हेयर एंड देन प्रेस ओके। सो नाउ आप जब इस पूरे डेटा को देखोगे तो यहाँ पे जहां भी गोल्फ नाम का कार मॉडल आपके पास है वो हाईलाइट हो चुका है। ओके, सो दिस इज हाउ हम टेक्स्ट जो है उसको करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट। अगेन मैं इसको क्लियर करती हूँ ताकि हम दूसरे रूल्स को भी एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, जस्ट फाइल दिस वर्कशॉप आप क्या कर सकते हो, आप नोट्स मेंटेन कर सकते हो, एंड जितने भी कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ जो सेम डेटा है आप उसको मैन्युअली मेरी तरह जो मैं आपको शो कर रही हूँ आप उसको लिखो फिर आप उसमें करो। आपके पास जो भी डेटा सेट अवेलेबल है, इफ यू हैव एनी डेटा सेट अवेलेबल इन योर लैपटॉप सिस्टम, आप ये सारे जितने भी मैं आपको बता रही हूँ आप अप्लाई करके देख सकते हो। सी अभी राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक वन। आई नो बहुत लोग को वो आइडिया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग को बिल्कुल भी आइडिया ना हो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में भी जब इस वर्कशॉप को आज एंड करेंगे तो हम इसमें एडवांस भी सीखेंगे, लाइक एडवांस हम कैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वो भी हम सीख सकते हैं इसमें। ठीक है, ऑफकोर्स सीखेंगे। सो while this workshop आप जब अटेंड कर रहे हो try to like interact, and if you have any doubt just let me know in chat box, and even आप क्या कर सकते हो कि आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो आपके लैपटॉप पे सिस्टम पे, और अगर अभी नहीं है अवेलेबल सो जस्ट टेक अ नोटबुक आउट एंड जस्ट मेक अ नोट्स लाइक ओके मैम ने हाईलाइट सेल्स रूल्स में क्या बताया, टॉप बॉटम रूल्स में क्या बताया जो आपको नहीं पता हो, तो that this way this workshop helps you better. Okay, so now after okay, so we have other option available here which is the duplicates value, to identify duplicates value. How does it work? Basically, if in this whole column, if we saw like many values are repeating, like Rio, Golf, 5 series, these are the duplicates value. And if we need to highlight this duplicates value here, we will select this duplicate value option. Okay, so ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने बाकी सारे ऑप्शन आपको करके बताए हैं। ठीक है, डेट को भी अभी हमारे पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जहाँ पे कोई डेट हमारे पास हमको दिख रहा हो, सो फॉर दिस मैं डेट नहीं अप्लाई कर रही हूँ, बट यस यू कैन डाउनलोड एनी डेटा सेट अवेलेबल इन गूगल एंड वहां पर आप ये डेट वाला कॉलम पे अप्लाई करके देख सकते हो। पर्टिकुलर कोई भी आपको डेट निकालनी हो तो वो आप डेट यहाँ पे डालोगे और वो हाईलाइट हो जाएगा। ये ऐसे वर्क करता है। अब डुप्लीकेट्स वैल्यू आपको खुद परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे मैंने बाकी सारे बताए, यू शुड परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वर्कशॉप, खुद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो नाउ ये पूरा हाईलाइट सेल्स रूल्स खत्म करने के बाद लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द टॉप बॉटम रूल्स। So okay, so what does this top bottom rule says? First option is there,
like to identify top 10 items. Okay, so we need to apply this top 10 items in a numerical data. We have the numerical data here as well as the mileage column. In this case, we are taking the mileage column. Okay, now selecting whole column here and applying the top 10 values. Okay, in case I just want to highlight only top 5 values. Okay, so for this मैं यहाँ पर इसको कम भी कर सकती हूँ. ओके, मुझे सिर्फ 5 अगर वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ पर बाय दिस एरोस मैं इसको कम भी कर सकती हूँ. एंड इन केस आई जस्ट नीड टू हाईलाइट टॉप 15 वैल्यूज, तो मैं 15 वैल्यूज में यहाँ पे बढ़ाकर लिख सकती हूँ. सेम कलर्स जैसे बाकी सब में सेम थे, यहाँ पर भी सेम आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन. लाइक मैं इस केस में ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट यहाँ पे कर रही हूँ, देन प्रेस ओके. आई थिंक 15 बहुत ज्यादा हो जाएगा. लेट्स गेट टू द टॉप 10 वैल्यूज आइटम्स एंड देन प्रेस ओके. अब बाय इटसेल्फ ये हाईलाइट हो चुके हैं. अगर हमें फिल्टरिंग करनी होती है या कुछ एनालिसिस निकालनी होती है, सो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है कि पहले हम अलग अलग कैलकुलेट करें और फिर निकालें कि टॉप 10 आइटम्स क्या हो सकते हैं वैल्यूज में. बट विद द कंडीशन फॉर्मेटिंग ये बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए. ओके ओके, सो नाउ मैं इस रूल को भी यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, हटा देती हूँ ताकि हम दूसरा रूल को भी अप्लाई कर सकें. क्लियर rules from the selected. Okay, next get top 10 percentage. See, top 10 values तो हमने निकाल ली particularly इस पूरे column से. If we need to identify top 10 percentage which is available in this our whole column here, so we just have to click on top 10 percentage. Okay, जो भी परसेंटेज जैसे हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, सो वो हमें आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि सिर्फ आपके पास जो है टॉप 10 परसेंटेज वो 29 यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिख रही है वो हाईलाइट होकर आ रही है. सो दिस विल वर्क एज द टॉप परसेंटेज हेयर. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बॉटम 10, just like the top 10 items we have applied before, bottom 10 items work. The percentage of bottom 10 items also work here. You can also obtain above average values and below average values, which is available in particularly any column. Okay, so now again जैसे मैंने आपको top 10 items, top 10 percentage यहाँ पे करके बताया है. I hope from my side आप top 10 bottom 10 items, bottom 10 percentage, above average, below average को भी खुद से explore करेंगे. Okay, you can do it on your own because it's not that much difficult. ये बहुत ही simple है. आप जैसे देख रहे हो मैं खुद यहाँ पे बस select कर रही हूँ और खुद मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ. आई डोंट नीड कि मुझे बहुत टिपिकल कुछ करना पड़े, कैलकुलेशन, कुछ कोडिंग करना पड़ रहा है, जस्ट लाइक द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, सो आपके लिए टास्क है, आप ये सारे जो करोगे बाद में पढ़ने के बाद, वर्कशॉप खत्म होने के बाद ये खुद करोगे. ओके, चलो अब विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में. ओके, सो व्हाट डज दिस डेटा बार्स इज कॉल्ड? ओके, सो इट्स लाइक कि अगर जैसे वैल्यूज के अकॉर्डिंगली मुझे उनका कलर फिल करना है इस पूरे कॉलम में. अभी हमने माइलेज का देखा था, फॉर अ चेंज हम थोड़ा प्राइस का देख लेते हैं. थोड़ा बहुत चेंज करते रहेंगे ना तो अच्छा लगता है, मजा आता है. So in this data bars, basically, we need to fill the colors accordingly to its sprites. See, अभी जैसे टॉप मोस्ट मुझे वैल्यूज क्या दिख रही हैं, 13,374. तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा कलर उस वैल्यू में आना चाहिए. तो यहाँ पर हमें कुछ भी ना ऐसे न्यू टैब ओपन करने की जरूरत ही नहीं है. If we drag our cursor here on this gradient fill, ये अपने आप ही डेटा बार्स को फिल कर रहा है बेसिकली. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि वैल्यूज के अकॉर्डिंगली फिल कर रहा है. सी, जैसे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, अब आप नोटिस करोगे सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू मेरे पास कौन सी है, 14,837. तो उसका ऑलमोस्ट जो हमारा पूरा सेल है वो बार यहाँ पे फिल हो चुका है. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली हाईलाइट कर सकते हो डेटा बार्स अकॉर्डिंगली टू इट्स color basically, right? We have many other options available here for the color one, like if you need to fill the yellow color
blue color and this pink and a lot. Okay, so just like this data bars, color scales is work. Okay, so first I need to clear this, नहीं तो बहुत messy हो जाएगा. Okay, so now when we talk about the color scales, आप सबको पता है, you know all about the traffic lights, how does it work, green, yellow and the red. Same reference we can took here as a traffic light. जैसे हमारे पास colors हैं like yellow, green and red. इस केस में जो सबसे कम वैल्यूज हैं वो आपकी रेड कंसिडर हो रही हैं, जो सबसे ज्यादा आपकी वैल्यूज हैं वो आपकी ग्रीन, काइंड ऑफ ग्रीन फ्लैग की तरह यहाँ पे कंसिडर हो रही है. सेम येलो, लाइक जो बॉटम वैल्यूज है वो आपके यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइट हो रही है. ओके, सो इट्स काइंड ऑफ अ कलर स्केल, जस्ट लाइक अ ट्रैफिक लाइट्स, जो आपको बता रहा है कि वैल्यू कौन सी कम है, कौन सी बॉटम है, कौन सी ज्यादा है. ठीक है, अगर मुझे नेक्स्ट ऑप्शन देखना है यहाँ पर, तो ये ना उसका पूरा अपोजिट है. नाउ द हायर वैल्यूज आर शोइंग इन द रेड कलर. ओके, एंड द most lowest values are showing in green color. In also yellow color is same kind of consists the bottom values. Okay, we have other color scale also which includes the value green, white, red. So like these colors makes our data more interesting, you know. And just like color scales, you can just saw the icon sets here. All of you uses the Instagram, WhatsApp, and other social media platform where we used to chat in the emojis basically, right? So this type of emojis and icons जो हम हमारे data पे इससे icon set से भी कर सकते हैं. Just like this, the traffic light example I gave before, यहाँ पर proper उसका बना भी हुआ है. Even हम जो mobile signals हैं उसके through out भी जान सकते हैं. ठीक है, so this is what a whole conditional formatting works in MS Excel. This is the very important part. And also हम आगे जब थोड़ा डेटा वैलिडेशन पढ़ेंगे तो हम इसके साथ ही एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग को भी पढ़ के देखेंगे, जो आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होता है. सी, कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाइंग मैन्युअली आप बहुत कर लेते हो, बट जब बात आती है इंटरव्यू में कि आपको न्यू रूल से लगाना है, तब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सी, मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पहले डेटा वैलिडेशन बताना है, फिर आपको ये बताना है. तो हम बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप इसको करेंगे. ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको ये समझ में आया होगा. आई होप देर इज नो लैंग्वेज बैरियर एंड ऑल्सो आपको समझ में आ रहा होगा. जस्ट लेट मी नो इन चैट बॉक्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि अब हम हमारा सेकंड जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सबको समझ आ रहा है? ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? इज देयर एनी डाउट? Okay, okay. Okay, so let's continue our next topic, which includes the formulas. Okay, so formulas is the most basic and advanced topic of MS Excel, because with the help of formulas, we like obtain the data analysis value, statistical values, and do many calculation basically, right? If we talk about the basic formulas, जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे रिबन में आपको साइड में एक ऑटो सम ऑप्शन दिखेगा. इफ वी क्लिक इन ऑटो सम ऑप्शन, सो जो आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं, काउंट, एवरेज, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, वो आप यहाँ पे लाइक ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो. बट एक्सेल इज ऑल अबाउट यूजिंग अ फॉर्मूला करेक्टली. हमें वो कैसे करना है? ओके, सो फर्स्ट हम सम से स्टार्ट करते हैं. ओके, आई थिंक आई नीड टू एक्सपोर्ट वन मोर डेटा सेट. थोड़ा सा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा उसमें. Attendees, can you, whoever is unmute, can you please mute? It's disturbing a lot.
ओके, आई थिंक इस डेटा सेट पे वर्क करते हैं विथ अदर माइलेज एंड प्राइस, फिर दूसरा डेटा सेट हम इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज एज इफ राइट नाउ आई डोंट थिंक सो मुझे मिल पा रहा है. ओके, so I'm just want to obtain the sum of this price column basically. जो पूरा प्राइस आपके पास कॉलम है, मुझे इसका पूरा एक सम निकालना है जो भी वैल्यूज हैं. ओके, सो उसके लिए फर्स्ट आई नीड टू अप्लाई इक्वल हेयर, इक्वल देन सम जो हमारा फॉर्मूला है, देन आई विल प्रेस टैब. टैब की जगह आप यहाँ पर पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं, लाइक ब्रैकेट्स. अभी मुझे क्या करना है, पूरा रेंज मुझे प्राइस कॉलम का देना है क्योंकि मुझे इसका टोटल सम चाहिए. ओके, सो आई विल गिव whole range of this column named as price, and then I will close the brackets here and then press enter. जैसे मैं एंटर करूंगी वैसे इस पूरे कॉलम की मुझे टोटल वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएंगी. अब अगर मुझे क्या करना है, एज एन एग्जाम्पल, इफ आई हैव वन क्वेश्चन, आई वांट टू ऐड वैल्यूज ऑफ माइलेज एंड प्राइस टुगेदर. ओके, एंड मुझे फिर उसका एक न्यू कॉलम फॉर्म करना है, पूरा एक न्यू कॉलम फॉर्म करना है जो कि कैसी वैल्यूज होंगी, सम होगा माइलेज की वैल्यूज का और प्राइस की वैल्यूज का यहाँ पे. सो फॉर दिस हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगेन फॉर्मूला सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, इक्वल्स टू सम, देन प्रेस टैब, एंड देन द फर्स्ट सेल आई विल सिलेक्ट फ्रॉम द प्राइस कॉलम इटसेल्फ. ओके, हियर मैं ये सेल सिलेक्ट कर रही हूँ, देन कॉमा, देन द सेकेंड सेल जो हम माइलेज कॉलम से लेंगे क्योंकि हमें इन बोथ कॉलम्स को आपस में ऐड करना है और एक फाइनल सम वैल्यूज को निकालना है. So now I'm selecting the second cell here and then press enter. Okay, अब मुझे ये क्या कर रहा है, माइलेज और प्राइस दोनों का यहाँ पर निकाल कर मुझे वैल्यू दे रहा है. अगर मुझे एक न्यू कॉलम फॉर्म करना है, सो दिस प्लस कर्सर आपको जो साइड में दिख रहा है, मुझे इसको ड्रैग करना पड़ेगा. तो बाय द हेल्प ऑफ फ्लैश फिल ये पूरे जो बाकी सेल्स हैं नीचे तक वो कॉलम को फिल कर देगा. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इनकेस मैं यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, सो बाय फ्लैश फिल हम बोल सकते हैं माइलेज और प्राइस की वैल्यूज आपस में प्लस होकर सम होकर हमारे पास आ गए हैं. सो इन दिस केस हमने पहले क्या किया, एक पूरे प्राइस कॉलम में सम फंक्शन लगाया एंड देन माइलेज और प्राइस के हर एक सेल को आपस में प्लस करके एक न्यू कॉलम को हमने फॉर्मेट कर दिया. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द सम. सेम जैसे हम यहाँ पे सम यूज कर रहे हैं वैसे हम काउंट भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो काउंट क्या करेगा, जितनी भी इस पूरे कॉलम में सेल्स में वैल्यूज हैं उनको वो काउंट कर कर आपको यहाँ पर दे देगा. जैसे मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया देन एंटर किया, तो इट शोज वी हैव द 25 वैल्यूज अवेलेबल इन अवर वोल कॉलम. ओके, सेम अगर मैं एवरेज की बात करूँ, सी मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर रही हूँ बिकॉज काफी लोग को आइडिया होता है ना, हमको थोड़ा एडवांस में चलना है और बेसिक फॉर्मुलेस भी कवर करना है. सो मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं ले रही हूँ. ओके, इफ कि मैं ज्यादा स्पीड में जा रही हूँ तो जस्ट लेट मी नो. ओके, अब दिस टाइम मैं एवरेज निकाल रही हूँ, बट एवरेज मैं निकाल रही हूँ इस पूरे माइलेज वाले कॉलम का. ठीक है, एंड नाउ देन प्रेस एंटर. Okay, so we obtained the mileage here. ये बहुत ही नॉर्मल, हमने सम निकाला पहले, देन काउंट लगाया और फिर हमने एवरेज लगाया. अगर हमें इसमें एफ सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ यूज करना है तो वो हम कैसे यूज करेंगे. ओके, हम उसको देखते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूलाज तो आप यहाँ ऑटो सम से भी निकाल सकते हैं, but in case of count if, average if, sum if, there must be a confusion for understanding formula better and also for applying, like what question asked to you basically, and how do we need to do particularly with the formula. Okay, so for right now I'm deleting the whole values here, and first I need to apply the
सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि एक जो मॉडल है मैं उसको यहाँ पर ले लेती हूँ। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर मॉडल लिया रियो को इन दिस पर्टिकुलरली सेल, ठीक है। अब इस सेल जो रियो है, सिर्फ इसी रियो का मुझे प्राइस निकालना है इन पूरे डेटा सेट में से। ओके, टोटल सम निकालना है कि जहां जहां भी रियो वाली हमारी मॉडल कार रहेगी, हमें सिर्फ उसकी ही वैल्यू टोटल सम निकालना है। दिस इज द पर्टिकुलर कंडीशन वी आर ऑब्टेनिंग थ्रू द सम इफ फॉर्मूला। ओके, सो just like sum, we need to write sum if, then press tab for the proper. Now you can see the formula here. First, we need to select the criteria range. Like what is our criteria range? Criteria range is model column, okay, then comma, then we need to give a criteria. Here we define our criteria as the Rio, okay. Then last formula says, the last syntax says in our formula, like you need to select the range of sum जो आपको ऑब्टेन करना है। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। व्हाट इज आवर क्राइटेरिया रेंज? द मॉडल कॉलम हियर, इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया, देन कॉमा, देन क्राइटेरिया वी नीड टू गिव इज रियो बेसिकली, ओके, एंड देन कॉमा, देन हमें सिर्फ रियो का क्या निकालना है? प्राइस सम निकालना है इस पूरे डेटा सेट में से। सो लास्ट जो स्टेप होगा वो सम रेंज का होगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, यू डोंट नीड टू कंफ्यूज बिटवीन क्राइटेरिया रेंज एंड ऑल्सो सम रेंज। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ बिकॉज काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे सम रेंज दिया एंड देन प्रेस एंटर। अभी हमें जो डेटा निकल के आया है न्यूमेरिकल फॉर्मेट, वो सिर्फ क्या निकल के आया है कि आपका मॉडल रियो जो है इस पूरे डेटा सेट में से जितनी बार भी आया है उसके टोटल प्राइस यहाँ पे क्या है। सो सम इफ वर्क इज पर्टिकुलरली विद द क्राइटेरिया, एंड इसका फॉर्मूला आपने देखा। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं सम इफ। ओके, एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है अगर मैं बात करूँ तो। ओके, सो दिस इज हाउ द सम इफ फॉर्मूला वर्क। नाउ when we talk about the second one is your count if. अगर काउंट इफ की बात करें कि इफ आई जस्ट वांट टू अप्लाई द प्राइस रेंज, लाइक मुझे सिर्फ वो बेसिकली निकालना है वैल्यूज जो कि कैसी हो, आपकी 10,000 से ज्यादा हो इस पर्टिकुलरली पूरे कॉलम में, ठीक है। और मुझे वो निकालना है किससे? काउंट इफ से। सी हमने पहले काउंट कैसे निकाला था कि इस पूरे सेल्स में कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो हमें 25 निकल गई थी। Right now, the condition I'm mentioning here, ki I just need to count values which is greater than 10,000 in this whole column named as price. Okay, मुझे ये निकालना है. So for this, I'm using the count if here. Okay, selecting range. Okay, so we need to select the whole range of our price column here. ओके, देन कॉमा, नेक्स्ट अब मुझे क्राइटेरिया देना है। आई नीड टू मेंशन द क्राइटेरिया। फॉर द क्राइटेरिया मैं जो हमारे कॉमर्स हैं उसको मैं यहाँ पे रखूंगी। देन कंडीशन मैंने आपको क्या मेंशन की थी? आई नीड टू ऑब्टेन द वैल्यूज विच इज ग्रेटर देन 10,000। कितनी वैल्यूज हैं मुझे सिर्फ ये पता करना है। सो मैंने यहाँ पे 10,000 किया, देन हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स को आई क्लोज्ड हियर and then bracket be close. Now, when I enter this value, within a seconds, by the help of this countif formula, इसने हमें बता दिया कि 11 वैल्यूज हैं इस पूरे कॉलम में, प्राइस वाले कॉलम में, जहां पर आपकी वैल्यूज 10,000 से ज्यादा है। आप चाहो तो उस कंडीशन को ना चेंज भी कर सकते हो कि लाइक अगर आपको 8,000 से कम में लगाना है, आप लेस देन भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ काउंट इफ फॉर्मूला वर्क्स इन अवर एक्सेल। आप कोई भी डेटा सेट पे इसको लगा सकते हो। ओके, प्लीज राइट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट दिस ऑफ दिस काउंट इफ फॉर्मूला फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ओके,
So after the completion of COUNTIF and SUMIF, the average if is still there. Average if को हम समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं. It's like कि अगर मुझे यहाँ पर दो conditions के accordingly निकालना है कोई average, तो वो मैं कैसे यहाँ पे निकाल सकती हूँ. ठीक है. अब जैसे मेरे पास कोई ब्रांड है, मॉडल है कार का, रियो Q5 गोल्फ, एंड मुझे उसके अकॉर्डिंगली उसका एवरेज निकालना है. जस्ट लाइक हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने यहाँ पर प्राइस निकाल दिया था. ठीक है. सो अगेन आई एम टेकिंग मॉडल हियर. ठीक है, साइड में. एंड यहाँ पर मैं उसका प्राइस निकालूंगी सिर्फ इस वाले मॉडल का एवरेज के अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो एवरेज इफ देन चैफ. ओके. अब यहाँ पे जो मैं रेंज दूंगी वो ऑफ कोर्स रेंज दूंगी किसका, जो हमारे पास मॉडल पूरा कॉलम है. सो फ्रॉम दिस रियो टू GLA मैंने यहाँ पे रेंज दिया है. देन द क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने सेल में लिखा हुआ है विच इज द रियो. सो आई एम सिलेक्टिंग द क्राइटेरिया रियो हेयर. देन कॉमा, देन एवरेज रेंज. अब एवरेज रेंज जो है वो हमें प्राइस की निकालनी है बेसिकली, बिकॉज न्यूमेरिकल की. तो हम यहाँ पर इस पूरे प्राइस को निकाल लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे रेंज को, एंड देन एंटर. सी, अभी इसने हमें एवरेज निकाल के दिया, बट किस कंडीशन का, मॉडल रियो का इस पूरे प्राइस कॉलम में से. ओके. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. जस्ट लाइक अ सम इफ, जैसे सम इफ उसने किसका निकाल के दिया था, रियो का. सो जस्ट लाइक द रियो, यहाँ पर जो एवरेज में निकाल के दिया है वो सिर्फ रियो का निकाल के दिया है. इफ यू वांट कि आप इसको चेंज करना चाहते हो, लाइक आप सिविक करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिविक भी रख सकते हो. ठीक है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक्स. ओके. दिस इज द important formulas like sum if, average if, count if, okay, in MS Excel. Okay, so after the completion of these all most important formulas, हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट पे भी चलते हैं. ठीक है. अभी मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ. ओके. क्योंकि हमें यहाँ पर और भी फॉर्मूलाज को यूज करना है. ओके. सो आफ्टर दिस जो मैं यूज करूंगी, जैसे आपने मैक्सिमम मिनिमम तो आपको पता चल गया कैसे करना है हमको. एक मैं मैक्सिमम का भी यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाकर दिखाना चाहती हूँ. लाइक इफ वी नीड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू विच इज अवेलेबल इन अवर वोल प्राइस कॉलम. ओके. सो हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस एंटर. सो मोस्ट जो हमारी वैल्यू होगी वो निकल कर आ जाएगी. सेम गोज फॉर इफ यू वांट टू ऑब्टेन द मिनिमम वैल्यू हेयर. सो आप मिनिमम फंक्शन को यूज करोगे, देन प्रेस टैब एंड देन एंटर. तो जो मोस्ट आपकी लाइक सबसे कम वैल्यू होगी वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक वन फॉर्मूलाज. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मुझे क्या करना है, ओके, इन दिस केस वी हैव टू कॉलम्स. फर्स्ट इज मॉडल. No, not stick into model. Let's work to the another column. Okay, just like fuel type and transmission. अभी मुझे क्या करना है ना कि अभी मुझे इन दोनों कॉलम को आपस में ऐड करना है. अब ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ न्यूमेरिकल टाइप ऑफ कॉलम है ना. ये आपका कैसा है, ये आपका है टेक्स्ट टाइप का कॉलम. सो अभी हमें टेक्स्ट टाइप के कॉलम में क्या करना है, यहाँ पर इनको आपस में ऐड करना है. कैसे ऐड करना है कि आप डीजल और मैनुअल को आपस में ऐड कर रहे हो और एक न्यू कॉलम में आप उसको बना रहे हो. ओके, काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वन. तो इसको एक बार करके देखते हैं. सो फॉर दिस आई विल यूज द concatenate formula. ये क्या करेगा, दिस फॉर्मूला विल ज्वाइन टू टेक्स्ट टुगेदर, 2-3 more text together. So in this case, fuel type I'm taking the diesel, and from the fuel type column I'm taking the diesel cell, selecting, and from the transmission column I'm selecting the manual. ओके, टेक्स्ट. और इसको मैं आपस में जोड़कर एक न्यू कॉलम फॉर्म कर रही हूँ. आई होप आपको समझ आ रही होगी मेरी बात. ठीक है. इसको प्रैक्टिकली करते हैं. सो अभी मैं क्या कर रही हूँ,
फॉर्मूला क्या कह रहा है हमें, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 आपको यहाँ पे रखना है. सो टेक्स्ट 1 आई एम सिलेक्टिंग द डीजल सेल हेयर, ओके, फ्रॉम द फ्यूल टाइप कॉलम, ओके, एंड देन आई विल प्रेस इंसर्ट कॉमा. एंड नाउ मुझे ना इसको आपस में क्या करना है, थोड़ा सा अलग मतलब कि बीच में स्पेस मुझे चाहिए. सो फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेस आई एम यूजिंग द इन्वर्टेड कॉमास हेयर लाइक दिस. So by the help of this commas, there will be a space between these two texts, okay? And now after selecting the first text, I will select the second text, which is manual from the transmission column, okay? And after selecting this, close my formula and then press enter, okay. सो आप देख सकते हो यहाँ पे विद इन अ सेकेंड जो हमारा दोनों कॉलम की वैल्यूज थी, फर्स्ट इज सीजर, सेकेंड इज मैनुअल, वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं. इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दोगे तो पूरा का पूरा कॉलम वैल्यूज आपके पास निकल आएगा कुछ इस तरीके से. सो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग कि अगर आपको कोई इंटरव्यू में या फिर आपके कोई बॉस आपको बोलते हैं कि मुझे इन दो कॉलम को आपस में मर्ज करके बताओ, तो क्या करोगे, या तो आप कॉपी करोगे या तो मैन्युअली करोगे. बट बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉन्केटिनेट फॉर्मूला आप इजिली विद इन अ सेकेंड्स ये काम कर सकते हो. है ना इंटरेस्टिंग, थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग है, नॉट थोड़ा. ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, अभी मैंने इसको जोड़ तो दिया, अब मुझे मेरे बॉस ने बोला इसको पहले की तरह करो. एंड आई वाज लाइक ये क्या बात हुई, पहले आपने बोला उसको ऐड करो, अब बोल रहे हो कि इसको हटाओ. तो कोई वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन क्या है, लेट्स सी. सो वी हैव अ टैब नेम्ड एज डेटा. आप वहां जाओगे and in data there is a in ribbon you can see the option text to column, also known as delimiter. So by the help of this function और option हम विद इन अ सेकेंड इसको स्प्लिट कर सकते हैं, पहले की तरह कर सकते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे, अभी देखो, अभी ना इसमें फॉर्मूला लगा है, तो हम इसमें अगर टेक्स्ट टू कॉलम लगाएंगे ना तो इट विल नॉट वर्क, ऑफ कोर्स इट विल नॉट वर्क, जैसे जिसको पता है वर्क नहीं करेगा. सो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं इस पूरे के पूरे जो हमने ऐड किया है इस पूरे कॉलम को न्यू वर्कशीट में जाकर, स्प्रेडशीट में, नॉट वर्कशीट सॉरी, स्प्रेडशीट में जाके कॉपी कर रही हूँ. नाउ कंट्रोल सी जो शॉर्टकट था मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी शॉर्टकट से मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रही हूँ. ओके, अभी पेस्ट करेंगे तो वो फॉर्मूला ना आ जाए. फॉर दिस I am pasting values as the numerical one here. So you can see value and sort formatting. इन दिस फॉर्मेट मैं इसको कर रही हूँ. आप चाहो तो इसमें फॉर्मूलाज के थ्रू भी कर सकते हो, बट फॉर्मूलाज में ऑफकोर्स ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा वापस, विच विल मेक थिंग्स मोर डिफिकल्ट. सो मैं यहाँ पे नॉर्मल पोस्ट कर रही हूँ. अब आप देखोगे जब आप फर्स्ट सेल सिलेक्ट करोगे देयर इज नो फॉर्मूला इन फॉर्मूला बार, कोई फॉर्मूला नहीं है. सो हम इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो फॉर स्प्लिटिंग अगेन इस पूरे वैल्यूज को हम सिलेक्ट करेंगे. नाउ टेक्स्ट टू कॉलम जो ऑप्शन है हमारे पास वह उसको हम क्लिक करेंगे. वी हैव ऑप्शन डिलिमिटेड, ओके, डिलिमिटेड. इससे इस ऑप्शन से हम कैरेक्टर्स को स्प्लिट कर सकते हैं. ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग दिस just click on next option, and here you can see a tab containing tab, semicolon, comma, space. We need to split this values. So for that जो space option है उसको आप यहाँ पे check जो post है उसको आप check box को click करोगे. Now as you can see there is a data preview available here which says your diesel and manual both are split. आपको दिख रहा है यहाँ पे. अभी हमें next करने की कोई जरूरत नहीं है. We don't need to do the next selecting by next option. We just need to click on the finish option which is available here. Okay, आप यहाँ पे finish पे click कर दो. जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सी जो हमने पहले साथ में इसको कॉन्सिक्यूनेट फंक्शन से यहाँ पे लाइक रखा था वही अब हमारा विद इन अ सेकेंड स्प्लिट हो चुका है. सो दिस इज हाउ आप क्या कर सकते हो, दो टेक्स्ट को आपस में ऐड कर सकते हो, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट टू कॉलम्स फंक्शन आप उसको स्प्लिट कर सकते हो.
Also, this thing makes easier for you. बहुत सारे questions को बहुत easy कर देता है ये. I hope ये आपको understand हुआ होगा. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आई डोंट थिंक सो कोई डाउट इसमें होना चाहिए. ओके, मैंने इसको बहुत आराम से बताया है ताकि आप लोग इसको कर पाओ. ठीक है, सो बहुत यूजफुल फॉर्मूला है आपका. आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया. ओके, सो if we are talking about the text formulas, so we have other text formulas available in MS Excel, such as right, left, and mid. How does it work? Okay, so I need some text here now for applying the formulas. Now I just want to obtain the values from the left side, not values, letters. I must say letters, such as A, U, T, and O. Basically, I just want to obtain the text from this automatic to only auto. Okay, so for this, I will use the left side formula. This one is a text formula available in our MS Excel. Then click on tab button, then the text. We need to select the text we are referring here, then comma, then how many letters you want to split from this text basically. हमें वो number देना पड़ेगा. So right now I just want to obtain auto. ठीक है? So for auto, I will give numbers here, which is 4. And then close this bracket and then press OK. See, ये भी आपका लेफ्ट साइड से इसने स्प्लिट कर दिया. अभी मुझे राइट साइड से करना है स्प्लिट. मुझे ऑटो नहीं, मुझे मैटिक को स्प्लिट करना है. सो वी विल use the right formula. Okay, tab. Again, we will select our particular text. We need to split. Then comma. कितना करना है? राइट साइड से हमें करना है 5. ओके, फॉर्मेटिक के लिए 5 ऑफ कोर्स है ना. देन 5. ओके, एंड देन enter. Okay, so this is how automatic from left and right obtain हम कर सकते हैं. Okay, and if you want to split in a middle, like आपको middle से split करना है, like आपको T O M A ही values को split करना है, so उसके लिए आप यहाँ पे mid को भी use कर सकते हो. See, अभी मैंने auto और matic किया किससे? लेफ्ट और राइट फॉर्मूले से. मिड आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो. आप खुद इसको कर सकते हो कि कैसे हमें मिड को यूज करना है. ओके, just 1 second. Okay, can you please repeat? Yeah, sure, I will. Okay, so first I need to erase this. Okay, and okay, so in this case, I'm adding text values from fuel type and transmission type from both columns. Okay, तो यहाँ पर मैं add कर रही हूँ इन values को. उसके लिए हम use कर रहे हैं formula concatenate formula here. Okay, and then press tab. Concatenate formula मैं यहाँ पर use कर रही हूँ for merging these two texts from the fuel type column and transmission. Okay, so for this, I'm selecting the first cell, which is available in our fuel type column. Okay, then comma, then here, I'm putting the inverted commas. Why I'm putting the inverted commas basically? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है अगेन मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ? ये मैं बता चुकी हूँ. That's why I'm asking you a question. Why I'm putting the inverted commas here? Let me know. Anyone, please. The word, yeah. Okay, so make a space between two words. Yes, of course. Because ऐसे merging के बाद वो अच्छा नहीं लगेगा ना. That's why we need to give the inverted commas in between. Then I will select the second text from the transmission column. And then
आफ्टर कंप्लीटिंग माई फॉर्मूला आई विल जस्ट एंटर ओके। राइट नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे डीजल मैनुअल दोनों जो हैं ऐड हो चुके हैं। इसको मैं ड्रैग डाउन कर लेती हूँ ताकि पूरा का पूरा जो कॉलम है हमारा फ्यूल टाइप ट्रांसमिशन का वो पूरा ऐड होके हमारे पास आ जाए। ओके, सो नाउ हमने इसे ऐड कर लिया। अब वी नीड टू स्प्लिट लाइक बिफोर, जैसे पहले स्प्लिट था ना वैसे हमें इसको करना है। अभी हम इसमें जो है अगर डायरेक्ट लगाएंगे ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम। ओके, सो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो, हम डेटा जो टैब है, डेटा टैब में एक मिनट, ओके, डेटा टैब में वी हैव रिबन, इन रिबन वी हैव ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम। बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट टू कॉलम हम स्प्लिट करते हैं किसी भी कॉलम की डिफरेंट वैल्यूज को, मल्टीपल कॉलम्स में करते हैं, जो कि ये बोल भी रहा है। बट अगर आप यहाँ पर जिसमें आपने फॉर्मूला यूज किया है अप्लाई करोगे तो क्या करेगा? वो वर्क नहीं करेगा। सो फॉर दिस या तो आप दूसरे सेल में उसे कॉपी करो विदाउट फॉर्मूला, ठीक है, या फिर दूसरे आप स्प्रेडशीट में भी कर सकते हो। सो इन दिस केस मैं दूसरे स्प्रेडशीट में इसको यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी किया, अब मैंने कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से मैंने कॉपी किया, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल में जाकर जो मेरी पेस्ट वैल्यूज हैं उसको मैंने डिफरेंटली यहाँ पे पेस्ट किया है। डिफरेंट फॉर्म में क्यों पेस्ट किया है? ताकि ये फॉर्मूला उस स्प्रेडशीट से हमारे स्प्रेडशीट में पीछे पीछे नहीं आ जाए। ओके, सो फॉर दिस मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द टेक्स्ट टू कॉलम। ओके, सो आप ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, देन सॉरी, ओके, आप सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में आप जाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर डेटा जो है डिलिमिटेड, वो सिलेक्टेड है, आपको सिलेक्टेड रहने देना है। देन प्रेस नेक्स्ट। ओके, सो हेयर बाय डिफॉल्ट सिर्फ जो डिलिमिनेटर्स में टैब होता है ना वो ऑप्शन यहाँ पर आपका सिलेक्टेड होता है, बट फॉर स्प्लिटिंग का टेक्स्ट हमें स्पेस जो है उस ऑप्शन को यूज करना है। ऑप्शन को यूज मतलब चेकबॉक्स में क्लिक कर देना है। देन यू कैन सी द डेटा प्रीव्यू हेयर। जो डीजल एंड मैनुअल है वो आपको डिफरेंट लाइन में दिख रहे होंगे। हमें नेक्स्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू डू द फिनिश, क्लिक ऑन द फिनिश option available here. Okay, you need to click on finish option after selecting the checkbox of space, then press finish. Here you can see within a seconds हमने टेक्स्ट को पूरा स्प्लिट कर दिया जैसे हमने पहले उसको किया था। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, सो टेक्स्ट फंक्शन भी हमने बात कर लिया। अभी हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि डेसिमल में है। Always remember, in data analysis, if we want to obtain a particular insight that is much useful to you, a accurate value, accurate like insight जो कि हमारे डेटा पे से काम करे, so we need to like हमें क्या करना होता है कि कोई भी डेसिमल्स वैल्यूज को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको नॉर्मल वोल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, एज एन एग्जांपल इफ मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, मैं दूसरे शीट में करके बताती हूँ। ओके, लाइक एज एन एग्जांपल इफ मेरे पास ये वैल्यूज हैं और इसका मैं एवरेज निकाल रही हूँ, सम निकाल रही हूँ, इस तरीके का पूरा मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, और इसका मैं अगर एवरेज या सम निकाल रही हूँ, सो दिस विल मेक मी डिफिकल्ट, ये जो इंसाइट है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। ओके, सो इसके लिए एक ऑप्शन एक ऐसा आपके पास है, होम टैब में आप जाते हैं तो यहाँ पर जनरल पर आप देखोगे जो रिबन पे एक ऑप्शन है जनरल का, यहाँ पर नंबर्स में जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। नंबर्स में चेंज करने के बाद एक ऑप्शन होता है डिक्रीज डेसिमल का एंड ऑल्सो इंक्रीज डेसिमल का, ठीक है। इन दिस केस मैं डिक्रीज कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर इसको डिक्रीज कर दूंगी, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। अब एक ऑप्शन आप फॉर्मूला से कर सकते हो, जस्ट लाइक जैसे हमारे पास राउंड होता है, राउंड अप होता है, राउंड डाउन होता है। सो राइट नाउ वी आर इन टॉपिक फॉर्मूलाज इन एक्सेल, सो हम फॉर्मूला का हेल्प लेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए वोल नंबर, ठीक है। सो I will apply the round formula here, then press tab, and now
give the reference number which is 128.89 then comma then आपको कितना इसको राउंड करना है, मतलब आपको सिर्फ इसका 1 डेसिमल हटाना है पीछे से या फिर इसको आपको वोल करना है. इन दिस केस मुझे वोल करना है, सो मैं यहाँ पर नंबर डिजिट यहाँ पे दूंगी 0, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर. ओके, सो मेरा यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा लाइक जो है वोल बन जाएगा. थोड़ा बहुत हमारा नंबर की वजह से डेसिमल आपको दिख रहा होगा पीछे 00, बट ऐसे ये राउंड अप हो चुका है. सेम आप क्या कर सकते हो, राउंड अप और राउंड डाउन जो है उसको यूज कर सकते हो. एनीवन जो मुझे राउंड अप राउंड डाउन का मतलब बता सकता है? एनीवन, इफ यू नो व्हाट इज राउंड डाउन एंड राउंड अप in Excel. In this case, I only use the round formula. Let me know if you know about the round down and round up formula in Excel. Please let me know. What is round up and round down formula in Excel? It works like a round, for making a decimal number into round, whole number, sorry. Okay, round up means nearing higher whole number. Okay, like just one, if we have any value 129.89, so it will make it as a 130, right? And what does round down means? I think Ashwini answer, Prathamesh, Rutuja, Sayali, Ranubai. Please let me know. Madhavi, Jyoti, Jayesh. In this way, I think lower whole number. Okay, that's nice, Ashwini. Okay. Okay, so this is how this round formula works in Excel. Okay, so after this completion, let's get to the part of data validation. How does data validation work? Data validation is basically when you make like in a particular cell, जो मेरे पास यहाँ पे cell है, if I just want to insert a drop down list जो कि मुझे select करने में option देगा. जैसे कि if I want कि जैसे मुझे ये पता करना है कि मेरे पास model है ये, ओके एग्जाम्पल. अब मुझे इसके आगे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि ये डीजल टाइप है या ये हाइब्रिड टाइप है. मुझे ये पता करना है. अभी हमारे पास कॉलम है तो हमको शो कर रहा है. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे पता चला कि जो रियो है वो आपका डीजल टाइप है, सो मुझे यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सेम अगर जैसे गोल्फ है वो आपका हाइब्रिड टाइप है तो मुझे वो भी लिखना पड़ेगा. सो ऑल्सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड अगर हम इसकी जगह इन दोनों ऑप्शन का एक लिस्ट बना दें और इस लिस्ट को हम ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाएं तो इट विल मेक थिंग्स मोर इजियर टू मी or to all of you. So for this, we will use the data validation option. Okay, how does it work? Let's get to the data tab here. Here you can see you have an option available in the ribbon, which is the data validation. It says that pick from a list of rules जो हम अप्लाई कर सकते हैं. राइट नाउ मैंने बाय डिफॉल्ट ये सेल जो है रियो के सामने वो सिलेक्ट करके रखा है. ओके, इसका मैं फ्यूल टाइप भी जो है वो भी यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ. ठीक है, एंड जब मैंने सिलेक्ट किया ये सेल, then in this particular cell I will make a list. So मैंने data validation यूज किया. Then first option is data validation आपके पास आया, आप इसको सिलेक्ट करोगे. जैसे ही सिलेक्ट करोगे एक न्यू टैब डेटा वैलिडेशन का आपके पास ओपन हो जाएगा. Here you can see many options, any value, whole number, decimal, list, date, time, text length. In this case, we are using the list only. Okay, so we will select the list from this
whole drop down list, and then we have to give a source कि हमें source क्या देना है. Source we need to define कि डीजल है या फिर हाइब्रिड है. हमने अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, आप जैसे देख सकते हो. So I'm just giving the source diesel and hybrid here. Okay. इस ये source इसने ले लिया है. Then press OK. जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, यू कैन सी इन दिस सेल देयर इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब रियो के सामने डीजल और हाइब्रिड हमारे पास आ रहा है. आप चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो, इस लिस्ट को भी पूरा बना सकते हो. ओके, सो दिस इज हाउ द डेटा वैलिडेशन वर्क, कि मुझे अगर कोई वैल्यूज को बेसिकली निकालना है. अब एक और एग्जाम्पल हम इसमें चेकआउट करते हैं कि इफ वी नीड, ओके, इफ वी नीड कि मुझे पूरे मॉडल्स का यहाँ पर बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगी इस सेल में. अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर सेल and selecting data validation, and after data validation tab I'm selecting the list option, and source I'm giving the all models, car models name which is included in our column. Then press OK. Here you can see we have the drop down list of model name where it is Rio, GL, Explorer, or so on. So this is how data validation work. Up with the help of data validation, we will do the advanced condition formatting. Okay. So before this, I just want to explore the option which is a data consolidation. ये भी बहुत important है data consolidation. For this मैं एक new जो है वो आपके सामने different data टेबल्स को बनाऊंगी, और उन पूरे डेटा टेबल्स को हम आपस में मर्ज करेंगे. वैल्यूज को कैसे करते हैं हम, तो पहले मैं यहाँ पर एक सेकेंड ना. ओके, सो बिफोर दिस एक और हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं. वो है आपका ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट्स का. एज यू कैन सी देयर इज वेरियस मॉडल्स रिपीटेड. अब हम इसको रिमूव करना है. ओके, सो हम इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट सबसे पहले आप मॉडल जो है उस पूरे कॉलम को कॉपी कर लो एक न्यू टेबल पर, जिससे मैं कॉपी कर रही हूँ. नाउ ऑलरेडी इट इज सिलेक्टेड, तो जो रिमूव डुप्लीकेट्स वाला ऑप्शन है आपके पास डेटा टैब में रिबन में, हम उसको सिलेक्ट करेंगे. हेयर when we click on remove duplicates, so by default ये अपने आप ही कॉलम्स जो है आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको सिलेक्ट करके रखा है. इफ यू वांट मोर कॉलम्स एंड वांट टू रिमूव मोर डुप्लीकेट्स, आप यहाँ पे कर सकते हो. इन दिस केस वी हैव ओनली सिलेक्टेड वन कॉलम विच इज नेम्ड एज मॉडल, तो मैंने यहाँ पर इसको करके रखा है. ठीक है, देन प्रेस ओके. अब आप देखोगे राइट नाउ जैसे ही हमने यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट किया, वी हैव 10 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड ऑल्सो इट रिमूव्स, और ओनली 15 यूनिक वैल्यूज जो कि नॉन डुप्लीकेट है आपके पास वो यहाँ पर रह गई है. ठीक है, तो दिस फंक्शन helps you to remove duplicates, either it will be like text or maybe like numerical. ठीक है, देन प्रेस ओके. तो ये हमारा पूरा यूनिक वैल्यू का एक बन चुका है. अब प्राइस मैं रैंडमली डाल देती हूँ इसमें. ओके, एक थोड़ा सा हमारा ज्यादा आ चुका है, इसको डिलीट कर लेते हैं. देन आई विल मेक 3 टेबल्स सिमिलर. बेसिकली ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपकी जो टेबल्स होती है वो डिफरेंट होती हैं, बट इन तीनों टेबल में से एक चीज कॉमन रहेगी, ये याद रखना आप. जैसे यहाँ पे भी प्राइस हमारा सेम है, बिकॉज हम ज्यादा क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर हम अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगेगा वैल्यूज को चेंज करने में, कॉपी करने में. तो अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ऐसे सिमिलर वैल्यूज हैं कॉलम आपके मॉडल कॉलम में भी और प्राइस में भी. बट जब हम डेटा कंसोलिडेट यूज करते हैं, तो अगर हमारे पास 2, 3 या 4 टेबल्स हैं और उसको मुझे साथ में आपस में मर्ज करके एक न्यू बनाना है, जस्ट लाइक अगर मुझे टोटल सेल्स बनानी है इन मॉडल्स के अकॉर्डिंगली. ठीक है, टोटल सेल्स मुझे लेनी है, टोटल सेल्स मुझे मॉडल और प्राइस की ही लेनी है. तो इन दिस केस वी यूज द डेटा कंसोलिडेट ऑप्शन हियर.
Okay, so we have data consolidate function here, as you can see in data tab. आप यहाँ पे click करेंगे. Then we have many functions available here. If we need to obtain average, count, maximum, minimum, product, count numbers and variance, descriptive statistics, of course. In this case, I just want to obtain the total sales. So for the total sales, I'm selecting the sum option from this drop-down list. Okay, now it's time to give a reference. So first, from the first table, I will give the reference here. Okay, so I'm giving the reference from the first table. Here, सबसे important चीज, जब आप रेफरेंस दे रहे होगे, आप हेडिंग्स को, हेडर्स को नहीं सिलेक्ट करोगे. गॉट इट? हेडर्स को कभी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हेडर्स आप सिलेक्ट करोगे तो आपस में हेडर्स तो ऑफकोर्स मर्ज नहीं हो पाएंगे ना, प्रॉब्लम देंगे. सो वी डोंट नीड टू सिलेक्ट द हेडर्स, वी नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ अवर टेबल. ओके, सिलेक्ट किया, फर्स्ट रेफरेंस इज डन. अभी हमने 3 टेबल को प्लस करना है. ठीक है, सो उसके लिए हम जो ऑल रेफरेंसेस ऑप्शन है उसमें एक ऐड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप उस पर ऐड में क्लिक करेंगे. आपका फर्स्ट रेफरेंस हो गया. इट्स टाइम सेकेंड टेबल का रेफरेंस हम दें. ठीक है, सेकेंड टेबल का रेफरेंस भी आप कैसे दोगे? यहाँ पे क्लिक करोगे, देन ओके, यहाँ पे किया आपने, देन ऐड. ठीक है, ऐड कर लिया आपने. ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे पहले ना सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा. इस सेल में हमें चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है. हाँ, सब है. ओके, मैं फिर से वो रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आउटपुट सेल भी हमें देना पड़ेगा. इसको मैं डिलीट कर दे रही हूँ विदाउट एनी कंफ्यूजन. अगेन जो स्टेप मैंने आपको बताई वो मैं रिपीट कर रही हूँ. एज नाउ I'm giving the range of second table. Again, the last one, third one. मैं third one यहाँ पे इसको range दे रही हूँ, then add कर रही हूँ. Now, we have completed this first step, which is giving the reference. सारे reference हमने यहाँ पर दे चुके हैं sum के. ठीक है, now अब आप नोटिस करो यहाँ पर कौन सा कॉलम आपका कॉमन है. सी, अभी तो प्राइस हमारा कॉमन है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन वी यूज द डेटा कंसोलिडेशन आपका ये कॉमन नहीं होता है. सो फॉर दिस हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि जो आप देखोगे मॉडल जो है तीनों टेबल में वो सेम है. सो वी नीड टू गिव द रेफरेंस हेयर विच इज द लेफ्ट कॉलम. ठीक है, तो लेफ्ट कॉलम हम यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं जो कि तीनों टेबल में कॉलम कॉमन कॉलम है. देन प्रेस ओके. आप जैसे ही ओके करोगे, यू कैन सी विद इन अ सेकेंड्स हमारा मॉडल जो था वो वैसे ही आ जाएगा कार का, बट प्राइस इन तीनों टेबल में से हमारे पास टोटल होकर आ गया है. इन दिस केस कभी आपको कोई बोले कि मुझे इन तीनों टेबल में से वैल्यूज को मर्ज करके बताओ, टोटल निकाल के बताओ, एवरेज निकाल के बताओ, काउंट करके बताओ, यू कैन यूज अ डेटा कंसोलिडेशन हियर. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो आफ्टर द कंप्लीशन थोड़ा सा हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. आई होप अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट लेट मी नो प्लीज. आपको समझ आ रहा है? यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, एवरी टॉपिक? ओके, okay, so let's get to our another topic, which is filtering and sorting. Okay, so we have an option for adding a filter in home tab, as well as we have option for entering any filter in data tab also. So in this case, just using the home tab ribbon option, which is sort and filter. Okay, so I'm just selecting the whole table. Okay, so for selecting the whole table, there's a shortcut, which is Control+A. Okay, this is a shortcut I'm telling you. Okay, so after this, I want to add a filter. So we'll add a filter from this
ऑप्शन फिल्टर। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यू कैन सी हमारे हेडर्स में जो है वो ऑप्शन आ चुका है फिल्टरिंग का सारा। अभी मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। सो सॉर्ट मुझे कैसे करना है, अल्फाबेटिकली फ्रॉम ए टू जेड और जेड टू ए। तो अभी हमारा जो ये कॉलम है मॉडल वाला, वो कैसा है, टेक्स्ट वाला है। सो वी नीड टू सॉर्ट इट बाय ए टू जेड। सो मैंने ए टू जेड यहाँ पे सॉर्ट किया। एंड इफ यू वांट फ्रॉम सॉर्ट टू जेड टू ए, आप उसको भी कर सकते हो। जेड टू ए मैंने यहाँ पर इसको सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक सॉर्टिंग जो हम कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम कि मुझे फिल्टरिंग करना है। वी नीड टू डू अ बेसिक फिल्टरिंग। सो फॉर फिल्टरिंग, टेक्स्ट फिल्टरिंग, आप सर्च कर सकते हो ऑप्शन यहाँ पे। नहीं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सिलेक्ट ऑल से आप हटा दो। इन दिस केस मुझे सिर्फ सिविक जो कार है मॉडल, मुझे सिर्फ उसका पूरा का पूरा जो है फिल्टरिंग देखना है। आइदर इट्स ईयर, इंजन साइज, फ्यूल टाइप, ट्रांसमिशन, प्राइस। मुझे पूरा का पूरा डेटा सेट में से सिर्फ सिविक का डेटा देखना है। सो आई विल सिलेक्ट द टेक्स्ट चेक बॉक्स ऑफ सिविक हियर, देन प्रेस ओके। सो हेयर आप देख सकते हो सिर्फ सिविक का जो डेटा मेरे पास है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, अगर सिविक के साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे Q5 का भी डेटा यहाँ पर चेकआउट करना है फ्रॉम द होल डेटा सेट। सो मैं Q5 को भी चेक बॉक्स को क्लिक करूंगी अलोंग विद द सिविक इटसेल्फ एंड देन प्रेस ओके। नाउ आप सिविक के साथ Q5 का भी यहाँ पे डेटा देख सकते हो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू रिमूव दिस फिल्टर। सो आप वापस से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करिए एंड देन ओके कर लो। ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक वन। ये तो हम करते आ रहे हैं पहले से एक्सेल में। नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग एडवांस फिल्टरिंग इन एक्सेल। वो हम कैसे कर सकते हैं? ओके, सो फॉर दिस एडवांस फिल्टरिंग देयर इज अ ऑप्शन अवेलेबल इन डेटा टैब विच इज नोन एज एडवांस। ओके, एडवांस हमें करना है। एडवांस मुझे क्या करना है, चलो एडवांस हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एडवांस में ले रही हूँ पहले यहाँ पर मॉडल अलग से, named as Sportage, okay, along with its fuel type, which is electrical. So I just need only the filter in another cell। मुझे जैसे इस सेल में सिर्फ चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ डेटा मेरे पास वो आए जो कि आपका मॉडल स्पोर्टेज हो और ऑल्सो इसका फ्यूल टाइप भी क्या हो, इलेक्ट्रिक हो। वी हैव द टू कंडीशंस हेयर। सो इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंगली मुझे एडवांस फिल्टर लगाना है। कैसे हम लगाएंगे? फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट द एडवांस ऑप्शन अवेलेबल हेयर। देन बाय डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा टेबल आपका लिस्ट रेंज सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है लिस्ट रेंज तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे रेंज दे सकते हैं। नाउ वी नीड टू सिलेक्ट द क्राइटेरिया रेंज हेयर। सो क्राइटेरिया रेंज, दीज 4 बॉक्सेस जो हम एडवांस फिल्टरिंग के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम उसको सिलेक्ट करेंगे। देन वी नीड टू कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, ताकि हमें मर्ज नहीं करना इस डेटा सेट के ऊपर ही। सो वी नीड टू डू द कॉपी टू अनदर लोकेशन हेयर। ओके, कॉपी कहाँ करना है आपको? इस सेल में करना है। सो आई हैव गिवन द रेफरेंस हेयर फॉर दिस पर्टिकुलर सेल एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडवांस फिल्टरिंग, पूरा जो हमने पर्टिकुलरली क्राइटेरिया भर दिया है, नाउ सिर्फ आई विल प्रेस ओके हियर। एज यू कैन सी इसने मुझे क्या किया, अकॉर्डिंग टू माय क्राइटेरिया स्पोर्टेज मॉडल का दिया और जो फ्यूल टाइप थे इलेक्ट्रिक भी दिया, और सिर्फ इसी के कंडीशन के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे फिल्टरिंग करके दिया। ठीक है, अब अगेन मेरे पास एक ये केस आता है। दिस इज द केस फॉर द टेक्स्ट। वेट अ सेकेंड, let me delete it first for showing you proper example. Okay, I just want to apply a filter on price one। Like अगर मुझे greater than 10,000 ही कार का मॉडल का सिर्फ चाहिए पूरा डेटा सेट में से, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगेन हम उसको एडवांस फिल्टरिंग से निकाल सकते हैं। सो फॉर दिस वी नीड टू सिलेक्ट अगेन द एडवांस ऑप्शन। देन लिस्ट रेंज बाय डिफॉल्ट इसने खुद ले लिया है। नीड टू गिव द क्राइटेरिया रेंज। वी हैव द क्राइटेरिया ऑफ प्राइस
car models which is greater than 10,000 only. Okay, price is greater than. Then again, we'll select the copy to another location here. Okay, and then copy to. For copy to, I'm selecting this cell reference here and then press OK. Here, within a seconds, इसने हमें बताया कि we have particularly those models जिसका प्राइस 10,000 से ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ वही आपके पास फिल्टर होके इस पूरे डेटा सेट में से आ गया है. ठीक है, तो एडवांस फिल्टरिंग भी आपके इस तरीके से काफी हेल्पफुल हो सकती है. Ma'am, can you share this formula with example in mail ID? This formula for advanced filtering you're talking about, or any other formula? Swati? I think she's not there. Okay. No worries, no worries. Okay, so this is how you can do the advanced filtering. Okay, so as promised, let's get to the part of advanced condition formatting. Okay. Let me delete these advanced filtering option first. Now, ऑलरेडी आप सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ चुके हो. इट्स टाइम कि हम थोड़ा सा इसमें एडवांस जो है वो अप्लाई कर कर देखते हैं. वो कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको समझते हैं थोड़ा सा. ओके Okay, so for advanced filtering, we need to select the option available as new rule because as per my condition, I'm making the new rule here. Okay, so here, new rule. Okay, so before the new rule, I just need to like do the data validation here, right? Just explaining you in a minute why I'm doing this, basically. List and then vol column. Then press OK. So here I made the drop down list of models, car models like Rio and other. जैसे right now I'm selecting the Rio only. मैंने ऐसा भी क्यों किया? Because मुझे वो सेल्स को पूरे हाईलाइट करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉडल रियो को कंसिस्ट करते हो. सी अभी जब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग कर रहे थे तो हम पर्टिकुलरली एक कॉलम में अप्लाई कर रहे थे कलर्स, राइट. बट विद द हेल्प ऑफ दिस एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग हम जो रियो सिर्फ का एक मॉडल कंसिस्ट कर रहा है वैल्यू, उसका पूरा का पूरा हम जो है एक रो को हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी वो कैसे होगा. फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं पूरा डेटा. अगेन इन दिस डेटा आई एम नॉट सिलेक्टिंग द हेडर्स. ठीक है, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम्स. Now get to the home tab, then new rule. न्यू रूल में एक लास्ट ऑप्शन आपके पास है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट. सो वी नीड टू सिलेक्ट द लास्ट वन which is used a formula to determine which cells to format here. Okay, and then हमें यहाँ पर क्या करना है, जो आपका सेल है, ओके, सेल मॉडल का जो हम निकाल रहे हैं उसका फर्स्ट सेल वैल्यू को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे. ठीक है, मैं कैसे सिलेक्ट कर रही हूँ देखिए, इसको मैंने प्रेस किया. ओके, इट शोज मी लाइक दिस A2 मतलब A कॉलम उसका 2 रो वैल्यू. राइट नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, रोज जो है और कॉलम है वो लॉक्ड है. वी नीड टू अनलॉक द रो. ओके, सो जो रो के सामने मेरे पास लॉक का ऑप्शन है मैं उसको रिमूव कर रही हूँ. देन मैं इक्वल्स टू रखूंगी. इक्वल्स टू रखने के बाद यहाँ पे जो मॉडल में आपने पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया था उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी. ये लॉक्ड है, इसको आप लॉक रहने दीजिए. ओके, देन I will select format here, format, then fill. And
फिल में आपको जो भी आपका कलर आपको अच्छा लगता है, जैसे मुझे जो रियो है उसको हाईलाइट करना है इन ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, तो मैं लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे ले रही हूँ, पर्पल भी जैसे भी आप चाहो ले सकते हो। आई एम टेकिंग दिस ग्रीन कलर, देन प्रेस ओके। सो आप देखोगे आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है, ऑल्सो आपका कलर जो था वो भी आ चुका है। नाउ व्हेन आई प्रेस ओके, यू सी यहाँ पे जितने भी रियो थे वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। बेस्ट पार्ट, इट्स नॉट कि आप सिर्फ रियो को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, आप अगर कोई और ऑप्शन भी सिलेक्ट करते हो, इन दिस केस आई एम सिलेक्टिंग द सिविक वन। ओके, आई एम चेंजिंग बाय द डेटा वैलिडेशन। सो मैंने यहाँ पे सिविक जैसे चेंज किया, सी सिविक ने अपना कलर चेंज कर लिया। ओके, 5 सीरीज को मुझे करना है, 5 सीरीज ने भी कर लिया। अगर मैं किसी और को यहाँ पर करना चाहूँ, जस्ट लाइक गोल्फ, गोल्फ भी करेगा। सो अगर जैसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है, आप अगर किसी एक कॉलम में लगा रहे हो, उसकी जगह विद द हेल्प ऑफ एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग आप पूरे के पूरे रोज में भी लगा सकते हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन। दैट्स वाई पहले मैंने आपको डेटा वैलिडेशन पढ़ाया, फिर अभी मैं आपको लास्ट में यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग एडवांस करवा रही हूँ। Okay, I hope it's all clear to you. Please let me know if you have any doubts. इतने टॉपिक्स में कहीं भी आपको डाउट आया है, कुछ रिपीट करना है, तो just let me know. Please. I hope everything is clear to you. कोई डाउट नहीं आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा बहुत अच्छे तरीके से। Anyone? If you have any doubts, please let me know. ऋतुजा, रानूबाई, शुभांगी, ज्योति, जयेश, Ashwini, if you have any doubt from any topic, anything, just let me know. Till now, everything is good. Okay, that sound more good. Okay, so okay, that's nice. Okay, so I'm just stopping my screen for a minute. Okay, I just let you know all know कि आप ये जो एक्सेल आपने जो अभी सीखा वो कोर्सेस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कैसे आप मतलब इसको और अच्छे से सीख सकते हैं एडवांस लेवल तक। सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द आईआईटी, लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, जैसे कि मैम ने भी स्टार्टिंग में आपको बताया था। आई जस्ट लाइक लेट यू नो द कॉमन पॉइंट्स कि आईआईटी लाइक क्या आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली, राइट? So it's like IIT prepare you for the global stage by combining the technical excellence with the foreign languages. Here आप सिर्फ एक normal SQL, advanced Excel या फिर आप like पाइथन, पावर बीआई नहीं सीखते हो या टेक्निकल कोर्स नहीं सीखते हो। विद दिस कोर्स आप क्या सीखते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस सच एज जापानीज, फ्रेंच एंड जर्मन ऑल्सो, और ये आपको आईआईटी ही ऑफर करता है। ओके, and also it does not offer your courses, it's like it you build your career by the help of true placement support, and also including your profile building such as LinkedIn, naukri.com, also the resume building, because जो कंपनीज हैं वो आपको सर्टिफिकेट्स के लिए हायर नहीं करती हैं, स्किल्स के लिए हायर करती हैं। इफ यू हैड पर्टिकुलर स्किल जस्ट लाइक द कम्युनिकेशन थ्रू आवर्स जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, दिस इज द ऑल्सो अ स्किल जो हमें बनानी होती है फॉर फेसिंग एनी इंटरव्यू। सो आईआईटी प्रॉमिस करता है आपको उतना लेवल अप में तैयार करता है कि आप फेस कर पाओ वो सारे इंटरव्यूज, ठीक है? एंड ऑल्सो अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ, सो वेरी इंटरेस्टिंग कोर्सेज आर देयर सच एज डेटा एनालिटिक्स, business analyst program, and also the data scientist course. Like if I talk about the data ethics part,
कि ये स्टार्ट कैसे होता है थ्रू आउट एक्सेल। एक्सेल भी बेसिक टू एडवांस लेवल, जैसे आपने अभी एक डेमो देखा, मैंने आपको पूरा बताया। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको बेसिक भी बता रही हूँ, इंटरमीडिएट भी बता रही हूँ, और एडवांस लेवल भी मैंने आपको बताया। आई नो आज हमने थोड़ा कवर नहीं किया, बट वी हैव टुमारो ऑल्सो। हम टुमारो भी पूरा कवर करेंगे एडवांस जो हमारे टॉपिक्स होंगे उसको। सेम फॉर द एसक्यूएल। एसक्यूएल भी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं उससे भी ऊपर हम काफी चीजें इसमें पढ़ते हैं। पावर बीआई नॉट ओनली जस्ट क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड इज देयर। आप क्या कर सकते हैं, आप एसक्यूएल से डेटा कैसे हमें करना है कनेक्ट, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, डेक्स क्वेरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। पब्लिश कैसे करना है, रिपोर्ट्स कैसे करना है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है, हम उसको बना सकते हैं। सो विद द टेक्निकल स्किल्स, ये जो कोर्स आपका डेटा एनालिटिक्स का है, आप फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीख रहे हैं, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच और जापानीज, जो आपका इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज को भी ओपन करेगा। इंडिया में तो आप करेंगे थ्रू इंग्लिश एंड अदर, आप फॉरेन में भी अपने जो एक बैरियर है लैंग्वेज का, वो तोड़ के टेक्निकल स्किल्स के साथ ये सारा जर्मन, जापानीज, फ्रेंच में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो डेटा एनालिटिक्स में आप क्या सीखेंगे, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, और साथ में लैंग्वेजेस में। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आप करेंगे, जैसे कि आप रिटेल में कैसे वर्क करते हो, एचआर में, मार्केटिंग में, फाइनेंस के डेटा सेट पे आप कैसे रियल प्रोजेक्ट करते हो, वो आप कर सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो आईआईटी जो है, आईआईटीई, वो बेसिकली आपको जो है रिज्यूम बिल्डिंग में, लिंक्डइन में, मॉक इंटरव्यूज में भी हेल्प करता है। ठीक है, प्लस जो वर्किंग प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं, वो आपके ट्रेनर होंगे, आइदर फॉर द फॉरेन लैंग्वेज, आइदर फॉर द टेक्निकल स्किल्स। ओके, एंड जो टॉपिक्स हैं वो इस कोर्स में हम क्या कवर करते हैं, सो फ्रॉम द डेटा एनालिटिक्स पार्ट, सच एज डेटा क्लीनिंग, डेटा processing and data manipulation, all data analysis, EDA, exploitative data analysis. These are topic covered in this particular course, जो कि बहुत important है किसी भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट में, किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, राइट। एक्सेस स्किल्स अभी जो आपने सीखा, बहुत ही इंटरमीडिएट लेवल पे सीखा। वी लुकअप, इवन व्हाट इफ एनालिसिस, इवन अगर हम चाहे कि हमें फोरकास्टिंग भी करना है, वो भी हम सीखते हैं इन कोर्सेज में, राइट। Same goes for SQL and all. Okay, so this course offers you the basic to intermediate to advanced friendly. Okay, the best part कि आपको फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीखने को मिल रही हैं, टेक्निकल स्किल भी सीखने को मिल रही हैं। अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट प्रोग्राम के बारे में बात करूं, तो सेम ये भी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कोर्स है। सेम इसमें भी आप फॉरेन लैंग्वेजेस को ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या स्किल सीख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि एसक्यूएल, पावर बीआई, जीरा एंड एक्सेल तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, प्लस आप बीए एक्सपर्टाइज जो है प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको भी कर सकते हो, किस कैसे बिजनेस के लिए हमें बेटर चर्न पर कस्टमर्स को पहचानना है, प्रॉफिट इनसाइट्स निकालनी है, ठीक है, इवन मार्केट रिसर्च करनी है, ये सारी चीजें हम इसमें लाइक कर सकते हैं। लाइक इफ वी नीड टू डू द बिजनेस प्रोसेस मैपिंग, केसेस, फ्लो चार्ट्स एंड even wireframes, like agile, scrum and waterfall methodologies हमें क्रिएट करनी है, तो ये सारी चीजें हम जीरा एंड कॉन्फ्लिक्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द बिजनेस एनालिस्ट प्रोग्राम इटसेल्फ। एंड ऑल्सो जो इसमें डोमेन नॉलेज स्किल्स हैं आपकी, वो कैसे ग्रोथ करती हैं, लाइक फ्रॉम द हेल्थ केयर, रिटेल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स इज ऑल्सो देयर, जो मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू, रिज्यूमे बिल्डिंग, हर चीज के लिए रेडी करता है आईआईटी आपको, राइट। एंड बेसिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी में भी हम वर्क करते हैं बेसिकली। एंड ऑल्सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि यू विल लर्न द लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, जापानीज और फ्रेंच, आप उसको लिखना भी सीखेंगे, हाउ टू ईमेल राइटिंग इन दिस लैंग्वेजेस। So this will how help you, like it will help you to obtain the opportunities apart from the India. You know, foreign opportunities are open for you. And so this is what a business analyst program offer. Apart from this, we have another
program, which is data scientist. Data scientist is a best combo where you can learn the AI ML. Again, you will learn AI ML with business analytics while learning the international languages such as German, French, and Japanese. And in this course, you will learn Excel, SQL, Python, and also business statistics, machine learning, the most important, Power BI even, and AI, and also NLP, natural language processes. And you can do the end-to-end Camstron project with it, and with the real data set, with the real mentor support, and real portfolio projects भी आप इसमें कोर्स में करते हैं. ठीक है. एंड जैसे मैंने आपको बताया इसकी की आप क्या करते हैं, इस कोर्स में क्या सीखते हैं, starting from the Excel, SQL, Python, statistics, you will learn the advanced level, how to make a model by using ML and AI, how to make a proper dashboard and report by using the Power BI. And जो सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे इंडस्ट्री बेस्ड में जो प्रोजेक्ट्स हैं हर क्राइटेरिया में, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं. कैसे? जैसे रिटेल, फाइनेंस, HR, हेल्थ केयर, e-commerce, also case studies. So these all topics and these all courses are very valuable in IITE because ये आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको हर तरीके से एक डेवलप कर रहे हैं. Either it will be for training you foreign language, also your resume building, also your portfolio, also your कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को प्रिपेयर करने के लिए भी ये कोर्सेज आपको हमेशा जॉब रेडी करते हैं. ओके. सो अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की स्किल्स के बारे में बात करूं, सो एडवांस एक्सेल जो मैंने आपको बताया हर कोर्सेज में अवेलेबल है, आइदर इट इज बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट. ठीक है. SQL भी हर कोर्स में अवेलेबल है, बट थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो AIML जो कि डेटा साइंटिस्ट में, बिजनेस एनालिस्ट में हम जीरा पे वर्क करेंगे, इसके साथ ही SQL और एक्सेल के साथ, इवन पावर BI के साथ. डेटा एथिक्स में वी विल फोकस मोर इनटू EDA पार्ट, डेटा एनालिसिस. एंड डेटा साइंटिस्ट में हम मॉडल्स कैसे क्रिएट करना है, उस पर वर्क कैसे करना है, मशीन लर्निंग पार्ट, इन सबको हम करेंगे. और सबसे अच्छी बात इसमें है कि हम फॉरेन लैंग्वेजेस को भी इसमें करते हैं ऑप्ट. Okay, so this is all about the IITE courses. Okay, I hope all you have understand this. कोई doubt नहीं होगा आपको. If you have any questions and down, just let me know in the chat box, please. Related to IITE courses, related to the Excel parts which I've taught you before in this workshop. Any doubts you have, you can please put it in your chat box or you can ask it to the tutor. I think everyone has got understood everything you taught, Arpita. Okay, that's No one has any nice. doubt. Okay. Okay, I think no doubts. Everyone has understood everything. Okay, there's someone. Okay, yes. Okay, great. That's good. Everyone has got to know everything. Okay, thank you, Arpita, so much, and thank you all the attendees. We'll meet tomorrow again for our next lecture on Excel. Okay, I'll put our contact number and mail ID in the chat box. If you still have any doubts or any queries, you can just mail or contact us for the same. And we'll see you tomorrow, everyone. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am.